Good morning to everyone. So this is the sum we will do now. Let us read the question. Santosh Limited of Pune imported goods from California Limited of Canada. So this is the sum of import. What do you mean by import? Import means purchase of goods, but from a different country, from another country. तो ये country कौन सा है जहां से they have imported? Santosh Limited has imported from California Limited, which is the name of the company, and the company is situated in Canada. So this particular business, Santosh Limited, is in Pune, India, that is in Maharashtra, Pune, and it imports goods from California Limited of Canada for $1 lakh. The amount is $1 lakh on 1st January 2017. तो हम लोग ये जो कंपनी है इट इज इंडियन कंपनी. सो क्या सबसे पहला सिचुएशन हमें क्या करना होगा, ये जो $1 लाख का अमाउंट दिया है इसको रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके लिए वी रिक्वायर द एक्सचेंज रेट कि 1st जनवरी 2017 को व्हाट इज द एक्सचेंज रेट इज रिक्वायर्ड. Now the payment was made. Import किया है, purchase किया है, तो payment करना पड़ेगा. Export करेंगे तो we will receive payment. Now when we have done import, we will have to make the payment. So 25th January को हमने $35,000 का पेमेंट किया. Exchange rate is $1 is equal to 50. 20th January को exchange rate हमने अगेन $35,000 का पेमेंट किया. एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू 42. देन 1st April 2017 को फाइनल पेमेंट किया $30,000 का. एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू 48. नाउ एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर्स ऑन 1st January, जिस दिन हमने इंपोर्ट किया, 31st March 2017 was ₹44 and ₹46 respectively. मीन जिस दिन हमने इंपोर्ट किया एक्सचेंज रेट वाज 44 रुपीस. मीन्स इससे अगर ज्यादा पे करेंगे तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा. इससे कम पे करेंगे 44 रुपीस से ज्यादा पे करेंगे तो ज्यादा बाहर, सो इट विल बी अ लॉस. कम पे करेंगे तो इट विल बी अ profit. And 31st March को again there is a change in the exchange rate, that is 46 rupees. उसके हिसाब से we will decide whether it is a notional profit or a notional loss. Santosh Limited closed its book of accounts on 31st March every year. So year end का rate भी दिया है. Past journal entries in the books of Santosh Limited. Now let us start. Journal entries in the books of Santosh Limited for the period 31st March 2017. फाइनल पेमेंट 1st April को हुआ है जो कि नेक्स्ट ईयर में आता है. तो इसका हमें सिर्फ कब तक बोला है जर्नल एंट्रीज. दे हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग कि, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है देखो फॉर द पीरियड 31st March 2017, बट 1st April इज बियॉन्ड दैट पीरियड. तो इसका भी एंट्री अगर एग्जाम में सिर्फ इतना बोलते हैं कि वी हैव टू पास टिल 31st March, तो हम ये 1st April का एंट्री पास नहीं करेंगे. बट बिकॉज दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम इसमें सब सारा ही एंट्रीज पास कर लेते. जो नहीं पूछा है वो भी कर लेते. सो यहाँ पे द फॉर्मेट इज डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड
credit rupees. So सबसे पहले which is the date when we have done the import? We have done the import on 2017 Jan 1st. ये दिन में हमने क्या किया है? We have done import. देखो first line says Santosh Limited of Pune imported goods from California Limited of Canada for $1 lakh on 1st January 2017. So this is the first date when we have done the import. Import करेंगे तो it is a purchase. Purchase means expense, debit all expenses and losses. So हमारा entry रहेगा import purchase account debit, import purchase account debit टू किससे इंपोर्ट किया है? देखो संतोष लिमिटेड के बुक में संतोष लिमिटेड नहीं आएगा. नेम ऑफ द ऑपोजिट एंड ऑपोजिट इज कैलिफोर्निया लिमिटेड of Canada, California Limited of Canada, and how much it is? How it is? How much? Exchange rate कितना है? $1 lakh into exchange rate on 1st January is 44 rupees. So यहाँ पे 44 से multiply करेंगे. Then we will get the we'll get the amount on rupees. $1 lakh का import किया है, but उस दिन exchange dollar था $1 is equal to 44 rupees. So 1 lakh into 44 we get how much? 44 lakhs. So here we will write 44 lakhs. So इसका narration लिखेंगे. Being import of goods made at exchange rate of $1 equal to rupees 44. Being import of goods made at exchange rate of $1 is equal to rupees 44. This is the first entry. अब इसका payment कब किया? Let us see. Payment करेंगे तो money will come or go out. Go out because it is import. And when have we made the payment? हमने इसका पेमेंट किया है इंस्टॉलमेंट्स में. हमने इसका पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट्स में. एंड देखो यहाँ पे दिया द पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज. पहला पेमेंट किया है जनवरी 2017 को. पूरा $1 लाख नहीं दिया, $35,000 पे किया. पे करेंगे तो व्हाट विल गो आउट? Cash will go out. And who will receive the money? Who will receive the money? California Limited of Canada will receive the money. Debit the receiver. जिसको पैसा मिल रहा है उसको डेबिट करो. So account California Limited account, California Limited of Canada account debit to what will go out? Cash bank. Cash bank account. And कितना डॉलर? $35,000 into what is the exchange rate on 25th January? 25th January का exchange rate क्या है? 50 rupees. So कितना बाहर पैसा बाहर?
50 रुपीज के हिसाब से जाएगा, तो 35,000 इंटू 50 दो करो, how much it is coming? 35,000 into 50, it is coming 17,50,000. 17,50,000. लेकिन हमने जिस दिन एक्सचेंज रेट किया, I mean हमने जिस दिन इंपोर्ट किया, उस दिन व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट? जिस दिन हमने इंपोर्ट किया, that day the exchange rate is 44 rupees. So here we will write 35,000 into 44, कितना आएगा? 35,000 into 44, we get 15,40,000. So tell me, is it a profit or a loss? We were supposed to make a payment where हम exchange rate तब सिर्फ 44 रुपीज था, और जब हमने एक्चुअल पेमेंट किया एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, तो हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का समझने का तरीका उल्टा है। एक्सपोर्ट में अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है तो हमें पैसा मिलने वाला रहता है, तो ज्यादा पैसा मिलता है, बट इंपोर्ट में वी हैव टू मेक अ पेमेंट, मनी विल गो आउट। मीन जहां पे हमने सोचा था 44 रुपीज बाहर जाएगा, बट वी हैव टू पे 50 रुपीज, तो 6 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। हर एक डॉलर के ऊपर 6 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट वी आर मेकिंग, सो इट्स अ लॉस। अमाउंट देखो, क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में कम है, सो डिफरेंस आ रहा है डेबिट में। इसको बोलेंगे FEF अकाउंट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। कितना डॉलर? 35,000 पे कितना? 6 रुपीज का इट इज अ लॉस। सो हाउ मच यू आर गेटिंग? 6 रुपीज का लॉस है, सो यू विल गेट 2,10,000। 2,10,000, we are getting 2,10,000. So अब हम देखेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट विल टैली, तो इसको बोलेंगे बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड ऑन इंपोर्ट परचेज एंड लॉस। क्या हो रहा है इधर? लॉस ड्यू टू exchange rate fluctuation recorded। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हुआ, अगर एक्सचेंज रेट सेम रहता 44 रुपीज, तो देयर वुड हैव बीन नो प्रॉफिट, नो लॉस, बट बिकॉज देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, वी हैव incurred a loss, we have incurred a loss. So now the next date कभी है? When have we received the next installment? Sorry, receive नहीं हो रहा है, यहाँ पे पे हो रहा है, तो हमने नेक्स्ट पेमेंट किया 20th जनवरी को, अगेन $35,000, but today the exchange rate is 42 rupees, $1 equal to 42। but जब हमने पेमेंट की, हमने जब इंपोर्ट किया था $1 was 44। now today when we are making the payment $1 is 42, मतलब हमने सोचा था 44 रुपीज पे करना है, बट आज एक्सचेंज रेट है 42, मतलब हम 2 रुपया कम पे करेंगे, तो हमारे लिए ये प्रॉफिट है। तो अगर ज्यादा पे करेंगे लॉस, कम पे करेंगे तो प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? ज्यादा पैसा पे करेंगे तो लॉस, कम पैसा पे करेंगे तो प्रॉफिट।
So now let us again go to the date. It is which date? The date is January 28th. So January 28th को again किसको पैसा देने वाले? कैलिफोर्निया लिमिटेड ऑफ कनाडा अकाउंट डेबिट. हम कितना डॉलर्स का पेमेंट? $35,000 का पेमेंट. बट क्या था? 44 रुपीज के हिसाब से. बट हमारा जो पैसा जा रहा है, क्या बाहर जा रहा है? इम्पोर्ट पेमेंट के टाइम मनी इज गोइंग आउट बिकॉज इट्स अ इम्पोर्ट. वी आर मेकिंग अ पेमेंट. सो हम पे कर रहे हैं किसके हिसाब से? $35,000. But today the exchange rate is 42 rupees. 42 rupees is the exchange rate. So we have to multiply and see. 42 means how much? 14,70,000. And 44 के हिसाब से उन्हें ऑलरेडी ऊपर भी लिखा है. It is 15,40,000. Now what is higher? हम देख रहे, देखो, डेबिट इज हायर देन द क्रेडिट. डेबिट इज हायर मीन्स हमने 44 रुपीज पे करना था, बट हमने सिर्फ 42 पे किया. प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट आएगा क्रेडिट में. एफईएफ अकाउंट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. यहाँ पे वी विल राइट FEF account. कितना? 35,000 into 2 rupees, which is coming to 70,000. So again हमारा पेमेंट हो गया. प्रॉफिट लॉस also we have recorded. In this it is a profit. So हम लिखेंगे being payment made on import. सिर्फ import लिखेंगे तो भी चलेगा because import means purchase from another country. So and profit due to exchange rate fluctuation recorded. So this is also done. So now again go to the question. Next to payment किया है 1st April को. You can see 20th January को $35,000. उसके बाद see the next line. Next payment is made on when? Next payment is made on 1st April 2017, and that one is the final payment. And they have given the amount also. $30,000. टोटल $1 lakh का इंपोर्ट किया. 35 पहले दिया, फिर 35 दिया, 70 दे दिया. 1 लाख में से 70 दे दिया. सो नाउ $30,000 पेंडिंग है. वो हमने किया 1st April को. दैट पेमेंट वी हैव डन ऑन 1st April. Exchange rate is $1 equal to 48. Exchange rate is $1 equal to 48. Now, but उससे पहले 1st April से पहले आता है ईयर एंड. द ईयर एंड इज 31st March 2017. Year end is 31st March 2017 when exchange rate is 46 rupees. Exchange rate is 46 rupees. Now 40 जिस दिन इंपोर्ट किया था exchange rate was 44. जिस दिन इंपोर्ट किया था exchange rate was 44. ईयर एंड में exchange rate is 46. मीन्स ज्यादा पैसा. अगर हम अज्यूम करते हैं कि आज के दिन ईयर एंड के दिन हमने $30,000 का पेमेंट कर दिया. अज्यूम कर रहे, वी हैव नॉट एक्चुअली मेड द पेमेंट. अज्यूम कर रहे कि हमने पेमेंट किया. देन टेल मी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा.
ये अज्यूम्ड लॉस को हम बोलते हैं नोशनल लॉस। क्या बोलते हैं? बिकॉज एक्चुअली वी हैव नॉट मेड द पेमेंट टुडे, आज हमने पेमेंट नहीं किया, बट ईयर एंड में हम अज्यूम करते हैं अगर पेमेंट बैलेंस होता है या रिसीट बैलेंस होता है, पैसा मिलने वाला बैलेंस है या पैसा पे करने वाला बैलेंस है, तो हम अज्यूम करते हैं ईयर एंड में मिल गया पैसा या पे कर दिया, तो या तो हमें नोशनल प्रॉफिट मिलेगा या तो नोशनल लॉस मिलेगा। टुडे इज एग्जाम्पल में बिकॉज ज्यादा पैसा पे करेंगे सो इट इज अ लॉस, नोशनल लॉस। लॉस मतलब एफईएफ विल बी इन द डेबिट, लॉस मतलब एफईएफ किधर रहेगा? डेबिट में, बिकॉज एफईएफ इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, credit all incomes and gain. So date is 31st March. Date is 31st March. तो 31st March को लॉस हुआ तो we will say FEF account, FEF account debit. कितने का लॉस हुआ? कितना पेमेंट बाकी है? $30,000 एंड लॉस कितने का हुआ है? ₹2 का, because when we had made the import it was 44 and today the exchange rate is 46, means 46 में से 44 माइनस करो, ₹2 का लॉस। एंड ये किसको पे करना है हमें? पैसा बाहर नहीं जा रहा बिकॉज एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया, हम अज्यूम कर रहे हैं अगर आज पेमेंट किया तो we are assuming to make a payment, not actual payment is done. Actual payment करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, पैसा बाहर नहीं गया। अगर पे करेंगे तो किसको पे करेंगे? कैलिफोर्निया को। सो नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस में कैश बैंक नहीं आता, ओनली प्रॉफिट या लॉस की एंट्री आती है। ओके, प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ क्रेडिट में, लॉस हुआ तो एफईएफ डेबिट में। So how much is this coming to? 60,000. इसको बोलेंगे being notional loss, being notional loss recorded, being notional loss recorded on year end date, या बैलेंस शीट डेट लिखेंगे या सिर्फ नोशनल लॉस रिकॉर्डेड लिखेंगे, इट्स ओके। सो एक और चीज करते हैं हम, ईयर एंड में एफईएफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। ईयर एंड में एक और चीज करते हैं, क्या करते हैं? एफईएफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। नाउ सी एफईएफ अकाउंट कौन से एंट्री में आया है? फर्स्ट एंट्री में। कैन यू सी एफईएफ? नॉट देयर। नेक्स्ट वन, सेकेंड एंट्री January 25th को, इस तरह एफईएफ कौन से साइड में? डेबिट में। डेट है 25th, डेबिट में है एफईएफ एंड अमाउंट इज हाउ मच? 2,10,000। अमाउंट इज हाउ मच? 2,10,000। डेबिट का डेबिट में लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, ऑपोजिट में कैश बैंक है, डेबिट साइड में ही लिखेंगे, बट एफईएफ अकाउंट में 2 एफईएफ नहीं लिख सकते। जो अकाउंट का हेड होता है उसमें वो अकाउंट का नाम नहीं आता, हमेशा किसका नाम आता है? ऑपोजिट अकाउंट। तो ऑपोजिट अकाउंट में कैश बैंक है। सो डेट, रिमेंबर द डेट, डेट इज 2017 ना, 2017 25th Jan, 25th Jan. See here, 2017 25th Jan. FEF debit में है, amount है 2,10,000. So we will write name of the opposite. Debit का debit में लिखेंगे, but name लिखेंगे opposite account का, cash bank account. And amount लिखेंगे 2,10,000, which is the amount of FEF. Now again go to the next entry. Next entry is 25th के बाद
28th, and here FEF is in the credit. Amount is 70,000. Name of the opposite account, credit का opposite debit. Debit में it is California. Credit है तो name of the opposite account, opposite credit का opposite is debit, debit का opposite is credit. तो 2 FEF account, FEF credit में date है 20th Jan. Name of the opposite account which is California. Amount is 70,000. FEF का amount is 70,000. So credit on the credit side, 2017, 28th Jan. Name of the opposite account. So to California Limited of Canada. Sorry, 2 नहीं आएगा. इधर क्या आएगा? By. क्रेडिट साइड हम स्टार्ट करते हैं बाई से एंड यहाँ पे लिखेंगे 70,000. This is also done. Now again go to the next entry which is 31st March. FEF is in the debit. लेकिन name of the opposite account which is California credit side में and amount is 60,000. जब भी FEF जो साइड में रहेगा वही साइड में लिखेंगे, बट FEF में 2 FEF या बाई FEF नहीं लिख सकते. नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट. सो डेट क्या है? 31st March and name of the opposite account which is California Limited. And amount कितना दिया है? Amount given is 60,000. Now इसके बाद there is no FEF because that was the last entry. Close FEF account. कौन सा साइड हैवी है? डेबिट क्या क्रेडिट? डेबिट इज हैवी. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मींस एक्सपेंस ज्यादा है. सो टोटल वही है साइड का, डेबिट का साइड ज्यादा है तो हम डेबिट साइड का टोटल दूसरे साइड में भी लिखेंगे. माइनस करो, हाउ मच यू गेट? 2,70,000 माइनस 70 वी गेट 2 लाख. एंड ये ऑपोजिट साइड का जो भी बैलेंस है वो जाएगा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किधर जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड डेट क्या है? ईयर एंड का डेट क्या है? 2017 ऑलरेडी लिखा है तो फिर से नहीं लिखते हैं. 31st March. What is it? 31st March. Now जब हम इसका जर्नल का ये लेजर में है तो लेजर का जर्नल करते हैं तो FEF के कौन से साइड में है? ये बाई P&L अकाउंट FEF के कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में है ना. बाई P&L अकाउंट मींस इट इज इन द क्रेडिट साइड. सो FEF विल कम इन द क्रेडिट. FEF किधर आएगा? क्रेडिट में. एंड नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट डेबिट साइड में. देखो अगर FEF के डेबिट में रहता तो FEF डेबिट में आएगा. FEF के क्रेडिट में रहेगा तो FEF विल कम इन द क्रेडिट. ये एक्चुअली क्या हुआ है? एक्सपेंस ज्यादा है ना तो इट्स अ लॉस. एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस. लॉस हमेशा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम्स इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. सो P&L अकाउंट डेबिट एंड ऑपोजिट में मैंने क्या बोला? FEF इज इन द FEF के क्रेडिट साइड में तो FEF किधर रहेगा? क्रेडिट में. FEF account. FEF will be in the credit. And what is the amount? 2 lakhs. So we will write 2 lakhs. And यहाँ पे what is the year end date? 31st March. And here इसको क्या नरेशन देंगे? Being balance transferred. Being balance of FEF account transferred. So with this
ईयर एंड इतना ही बोला था, एंट्रीज पास करने हो गया, बट हम ये सब में बाकी नहीं पूछा है, वो भी वी विल सॉल्व। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, बैलेंस पेमेंट अभी भी बाकी है। बैलेंस पेमेंट कभी का बोला है, 1 अप्रैल, एंड 1 अप्रैल को $30,000 का पेमेंट हमने किया। एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इज इक्वल टू 48। सो नाउ पेमेंट करेंगे तो मनी विल गो आउट, बट हु विल रिसीव द मनी? इट इज हाउ मच? इट इज April 1st, and who will receive the money? California of Canada account debit कितना डॉलर? $30,000 into exchange 48 तो बाहर जा रहे पैसा, बट कितना देना चाहिए था? 44 स्टार्टिंग में था, बट जब हमने नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस की एंट्री पास की तो ईयर एंड में रेट कितना था? देखो, एक बार हम नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस की एंट्री पास कर देते हैं तो उसके बाद हम ईयर एंड के रेट के साथ कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करते हैं? ईयर एंड के रेट, ईयर एंड का रेट इज हाउ मच? ईयर एंड का रेट इज 46, ईयर एंड का रेट इज 46। So 30,000 into 46 करो, 30,000 into 46 which is coming to 13,80,000। एंड हमने पेमेंट किसके हिसाब से किया? पेमेंट किया तो मनी इज गोइंग आउट। आज पेमेंट आज किया तो आज का रेट क्या दिया है? 1 अप्रैल का रेट $1 इज इक्वल टू 48। सो 30,000 into 48. So how much we are getting? We are getting 14,40,000. एंड ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? हमने 46 के हिसाब से पैसा देना था, बट हमने 48 के हिसाब से दिया। इट इज अ लॉस। सो FPF अकाउंट डेबिट, इट इज हाउ मच? 30,000 पे कितना रुपीस का लॉस? 2 रुपीस का। 48 से 46, सो इट इज हाउ मच? 60,000 का लॉस। तो यहाँ पे बोलेंगे बीइंग पेमेंट मेड and on import and loss due to exchange rate fluctuation recorded. This is the entry. इसके बाद हर एक ईयर एंड में ना यहीं पे स्टॉप कर सकते, बट हर एक ईयर एंड में हम क्या करते हैं? FPF अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है वो PNL अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो FPF अभी एक ही एंट्री है तो हमें अकाउंट में लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, या तो यही अकाउंट में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। FPF के कहाँ पे है? FPF किधर है? 1 अप्रैल को डेबिट साइड में है। डेट क्या है? April 1st, डेट इज April 1st एंड FPF किधर है? डेबिट साइड में। नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, FPF इज इन द डेबिट, ऑपोजिट में क्या है? क्रेडिट साइड में कैश बैंक। तो टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 60,000। बस एक ही एंट्री है, इसको बंद करो। क्या हैवी है? डेबिट ही हैवी है। जो भी बैलेंस आएगा किधर जाएगा? बिकॉज FPF में कोई क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ईयर एंड कभी रहेगा? 2018 में, बिकॉज अभी मार्च अप्रैल के बाद नेक्स्ट ईयर में आएगा। ये कौन सा ईयर है? दिस इज
2017 फिर से FEF आएगा, सॉरी फिर से मार्च आएगा 2000, करेक्ट। तो इस कहाँ जाएगा ये PNL, सॉरी बार बार ऐसे हो रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस अगेन डेबिट हैवी था, लॉस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2018 मार्च 31 को FEF के कौन से साइड में है, PNL अकाउंट कौन से साइड में है, क्रेडिट में है ना। सो क्रेडिट मतलब FEF विल कम इन द क्रेडिट, इधर आएगा। लॉस किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाउ मच इट इज, 60,000, वही अमाउंट है ना। हाउ मच इज द अमाउंट, 60,000 टू विच इज द ऑपोजिट अकाउंट FEF। FEF का बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है, तो बैलेंस ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो हम हमेशा ऑपोजिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज ऑन द ऑपोजिट साइड। तो लॉस है तो FEF इज इन द क्रेडिट, प्रॉफिट रहेगा तो FEF विल बी इन द डेबिट। अकाउंट को खाली करते, बकेट को खाली करते PNL अकाउंट में। तो इसको क्या बोलेंगे, बीइंग FEF अकाउंट, balance of FEF account, balance of FEF account transferred. And with this, the sum is done. Thank you very much, everyone. Please note, 1 0 was missing here in the first entry, and now I have added that 0.